I am going to explain sporogenesis. Okay, and then the microsporogenesis and metasporogenesis and gametogenesis. In which the male gametophyte and female gametophyte and their development. Okay, so these terms became clear today during the double fertilization. Okay, the flowering part, right? We know that flower is modified fruit, okay, in which the floral leaves are organized. Floral leaves are organized. Floral leaves are organized. Okay, and these floral leaves consist of sporophyll. Okay, sporophyll means spore and phyll means leaves. Means these floral leaves which they bear the spore, right? It means in the flower the floral leaves bears the spores. Yes, come. They are sporophylls. Yes, right? So sporophyll is the floral leaves. Now sporophyll are two types. Sporophyll are two types: microsporophyll and megasporophyll. Okay. So microsporophyll and megasporophyll. Micro, the word micro denotes the male here, okay, and mega denotes the female. Okay, so microsporophyll. What is the microsporophyll in the flower? Male sex organ. Male sex organ. Male sex organ. And what is the male sex organ? क्या है male sex organ flower में? Stamen, right? Stamen is male sex organ. Is androecium. Androecium. These are the similar words. Correct? ये similar words है बेटा. जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसी को मेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं, ठीक है ना? उसी को स्टेमेन कहते हैं, उसी को एंड्रोइशियम कहते हैं. यानी स्टेमेन क्या है? स्टेमेन इज द यूनिट ऑफ, यस, यूनिट ऑफ एंड्रोइशियम, राइट? क्लियर? In which the microsporogenesis is going on. In the microsporophyll, in the male sex organ, in the androecium stamen, okay, microsporogenesis process is carried out. After that, resulting the microspores are formed. Clear? Means microsporogenesis is a process. Microsporogenesis is a process. After that, microspores are formed. Microspores are formed, and the microspores are haploid structure. ये क्या है? Haploid. Haploid means X, right? Clear? So, and these structures are diploid structure. Means these are sporophyte. These are
डिप्लॉयड सेल्स, वैल्यू इज x, राइट? ओके, नोट करते जाइए, स्टेप टर्म्स नोट कर लीजिए। Now, a detailed idea about the microsporogenesis. Okay. Once again, microsporophyle contain means it's all. microsporophyle, okay, 2x structure, 2x, okay, stamen, clear? The microsporophyle is stamen having a 3 part, do you know? कौन से बेटा? First is filament and connective and next and third. Okay, and third. Clear? डायग्राम देखिए कुछ इस तरह से है। Anchor is bilobed structure. Anchor is bilobed structure. Bilobed structure. Bilobed structure. Okay. It means the so anchor is microsporangia. Microsporangia. Anchor is microsporangia. Bilobed anchor is microsporangia. और माइक्रोस्पोरेंजिया में ही माइक्रोस्पोर्स होते हैं। सो देयर आर न्यूमरस माइक्रोस्पोर्स आर प्रेजेंट, ओके, इन द माइक्रोस्पोरेंजिया इन द एंकर। क्लियर? माइक्रोस्पोरेंजिया आपको लाइन डायग्राम से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपको डिटेल डायग्राम का डिटेल देंगे। इट इज माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर? माइक्रोस्पोरेंजिया के इनसाइड आप जानते हैं जब एंकर का डीएस देखते हैं, देन यू विल गेट द स्पोरोजेनस सेल्स इनसाइड द एंकर, inside the yes sporangia is 2x, right? sporangia के inside sporogenous tissues, right? sporogenous tissues लाइन डायग्राम एक बार बना लेंगे तो क्लियर रहेगा। कोई सभी जो है जितना तो है लेकिन स्टेप वाइज लाइन डायग्राम बना लेंगे तो क्लियर रहेगा। स्पोरोजेनस टिश्यू, राइट, मींस माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोरोजेनस टिश्यूज होते हैं। अभी हम इसका ब्रीफ करेंगे, है ना बेटा, कि स्पोरेंजियल वाल पहले पाई जाती है, फिर स्पोरेंजियल वाल के इनसाइड, है ना, जो टेट्रास्पोरेंजिएट स्ट्रक्चर है जिसमें कि स्पोरोजेनस टिश्यूज पाए जाते हैं। स्पोरोजेनस टिश्यू उसके सेंटर में पाए जाते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर टेपिटम होता है, फिर मिडिल लेयर होता है, फिर एंडोडर्मिस, फिर एपिडर्मिस, इस तरीके से। तो पूरे पोर्शन को स्पोरेंजियल वाल कहते हैं और ये स्पोरोजेनस टिश्यू अभी बताएंगे उसका डिटेल। बट हियर वी हैव टेकन ओनली स्पोरोजेनस टिश्यू। और स्पोरोजेनस टिश्यू कैसे क्या होगा? डिप्लॉयड होगा। तो इसमें भी 2x देखते जाइए, इसके पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा? बोलो, बताओ, हम लोग बताओ कौन सी चीज कहाँ से? ये भाई माइक्रोस्पोरोफिल पूरी जो बॉडी है, एंडोलिसियम जानते हो ना? एंडोलिसियम स्टेम जो जान रहे हो ना,
ये एंथर कहलाता है, राइट। और जो इसके बीच की जो ये मिड लाइन है इसको कनेक्टिव कहते हैं। क्लियर? बोलो। सो इट इज कनेक्टिव। ये बाइलोब एंथर है और ये क्या है? फिलामेंट। ये लिखे हैं इसमें। और इस पूरे स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेफिल कहते हैं। ये पूरा माइक्रोस्पोरेफिल। माइक्रोस्पोरेफिल के तीन पार्ट, फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर। ओके, एंथर इज माइक्रोस्पोरेंजिया, है ना? माने माइक्रोस्पोर्स को क्लियर करने वाला जो स्ट्रक्चर है, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया का डिटेल हम क्या बताएं? माइक्रोस्पोर्स बियरिंग स्ट्रक्चर, है ना बेटा? माने दैट स्ट्रक्चर व्हिच बियर्स द माइक्रोस्पोर्स, दैट इज माइक्रोस्पोरेंजिया। क्लियर? बोलो। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया हो गया, माने माइक्रोस्पोरेंजिया ये स्ट्रक्चर है, ठीक है ना? उसका टीएस काटेंगे जिसमें पॉलन साइट्स होते हैं, है ना? जिसको भी पॉलन चैम्बर कहते हैं। अभी इसका हम डिटेल आपको बताते हैं कि बाइलोब स्ट्रक्चर है कि किस तरह से, चलो बताई देते हैं। देख लीजिए डायग्राम में क्लियर हो रहा है। इसका जो टीएस इसका काटते हैं तो टीएस में देखते हैं ये स्ट्रक्चर हमें मिलता है, देखिए, है ना? जस्ट लाइक ये क्या है बेटा? पॉलन चैम्बर है। क्या है? पॉलन चैम्बर। इसी को पॉलन साइट भी कहते हैं, ठीक है ना? तो there are two pollen chamber in one loop. Yes, बाइलोब स्ट्रक्चर है। ऐसा स्ट्रक्चर है, बाइलोब स्ट्रक्चर है। इट इज द टीएस ऑफ एंथर। डायग्राम बना लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। टीएस ऑफ एंथर, इट इज फिलामेंट। ओके, इट इज एंथर। इसका ये टीएस है, इसको कहेंगे बेटा पॉलन चैम्बर। क्या कहेंगे? पॉलन चैम्बर और पॉलन साइट, ठीक है ना? इसमें पॉलन ग्रेन्स है, इसमें पॉलन ग्रेन्स है ना? यहाँ लिख सकते हैं आप कि पॉलन ग्रेन्स आर फिल्ड इन पॉलन साइट, राइट? जी जी, यस, बताएं। तो इस तरह से ये पॉलन साइट है, पॉलन चैम्बर है। इस पॉलन चैम्बर में पॉलन ग्रेन्स फिल्ड होते हैं। न्यूमरस पॉलन ग्रेन्स आर फिल्ड इन द पॉलन साइट। क्लियर? ये इसका टीएस है। यहाँ एक चीज ये समझनी है बेटा कि देयर आर टू पॉलन साइट्स, टू पॉलन चैम्बर इन वन लूप, मींस टू pollen sites per loop. There are, yes, and the bilobe structure. Hence, there are four pollen chambers. कितने pollen chamber हैं? Four pollen chamber in one anther. अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि एक एंथर में कितने pollen chambers होते हैं, तो आंसर हमारा होगा 4। लेकिन एक लोब में कितने पॉलन साइट या कितने पॉलन चैम्बर होते हैं, तो आंसर होगा 2। ये क्वेश्चन है ना? तो 4 पॉलन चैम्बर इन वन एंथर। ओके, इन वन एंथर। सो एंथर इज बाइलोब स्ट्रक्चर, बाइलोब। ओके, हेंस पॉलन चैम्बर या पॉलन साइट इन वन इन पर। ओके, नोट कर लीजिए इसको। So it is microsporangia. Means मैंने अभी आपको बताया कि that structure which bears the microspores,
यानी माइक्रोस्पोर को बियर करने वाले स्ट्रक्चर कौन है? माइक्रोस्पोर, यानी माइक्रोस्पोरेंजिया है ये। और ये पूरा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर है भाई, ये पूरा यहाँ तक फिट होते हैं और हमने उसका टीएस काट करके यहाँ से आपको टीएस कटिंग दिखा दिया, राइट। तो पॉलन और इस पूरे को हम क्या करेंगे? पॉलन साइड कटिंग, इसमें पॉलन चैम्बर। क्लियर ना? बोलो क्लियर? Microsporangia diploid structure, right? Microsporangia के inside microsporogenous tissue, in which the microsporogenesis is going on. So microsporogenesis, अब microsporogenesis में कौन सी ऐसी चीज है जो माइक्रोस्पोर्स को जनरेट करती है, प्रोड्यूस करती है? तो माइक्रोस्पोरोजेनस सेल्स में, माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू में बेटा माइक्रोस्पोर मदर सेल पाई जाती है, राइट? जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ इस केस में, पॉलन के केस में माइक्रोस्पोर मदर सेल को क्या कहेंगे? पॉलन मदर साइट कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पॉलन मदर साइट। इसको पॉलन मदर साइट भी कर सकते हैं। लिख लीजिए, वो आर करके टर्म्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या टर्म्स क्लियर करके बस दे देता है, तो हमें टर्म्स क्लियर होने चाहिए, है ना? तो लिख लीजिए, वो आर पॉलन मदर cells, okay? These are the 2x structure, 2x diploid here, right? Yes sir. Concept clear? Yes. बोलो बेटा? जी सर। है ना? तो ये पॉलन मदर सेल है। अब ये पॉलन मदर सेल, जो पॉलन मदर सेल है, इन पॉलन मदर सेल्स में मियोसिस होती है, right? Yes, then that diploid structure is converted into haploid structure. Clear? Yes. क्योंकि meiosis को reduction division कहते हैं, आप जानते होंगे। In which the chromosomes becomes half in the number. Yes. तो microspore mother cell में reduction division होगा, तो arrow बनाएंगे ऐसे, बेटा arrow के ऊपर लिख देंगे reduction division और यहाँ लिख देंगे और माइक्रोस्पोर्स haploid स्ट्रक्चर। क्या है? haploid स्ट्रक्चर माने एक्स स्ट्रक्चर। क्लियर? ये पूरा स्टेप जितना स्पोरोफिटिक जनरेशन कहलाता है, जितना पूरा स्टेप है ये पूरा स्पोरोफिटिक जनरेशन कहलाता है। ये आता है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। Here, fitting sporophytic generation. Okay. Once again, ये आ गया सबको समझ? आ गया। नोट कर लीजिए स्टेप्स नोट कर लो बेटा। हो गया? और कुछ पूछना है किसी को इसमें? किसी बच्चे का कोई क्रॉस क्वेश्चन है इसमें? कुछ पूछना है? क्या? एंथर? यस, और क्या? बिल्कुल है ही भाई। जो फ्लोरल पार्ट्स हैं, फ्लोरल पार्ट्स आप क्या कहते हैं? जो फ्लोरल पार्ट्स इसको क्या कहते हैं भाई? पेरिस, कोरोला, एंडोस्टियम एंड काइनेसियम, दीज आर द फ्लोरल पार्ट्स। ओके।
ओके, ये तो है, ब्रीफ कर दे इसको भी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन भाई। क्या है गाइडेंस कोरोना एंड्रोइसियम एंड गाइनोइसियम, ओके। इट इज द फ्लोरल पार्ट्स, ये क्या है फ्लोरल पार्ट्स है, और यही जो फ्लोरल पार्ट्स हैं दे मैन्युफैक्चर द फ्लावर, है ना बेटा। अब इसमें देखो जो काइलिक्स और कोरोना है दे आर द एसेसरी आर्ट, एसेसरी, ओके, हेल्पिंग पार्ट, वी कैन से हेल्पिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर, अंडरस्टैंड, यस, एसेसरी, एसेसरी जानना चाहिए क्वेश्चन, एसेसरी आर्गन वी कैन से, ओके, और हेल्पिंग पार्ट ऑफ फ्लावर which provide the help in the fertilization or pollination, clear, and androecium and gynoecium both are the necessary or reproductive part, okay, which take part in the fertilization, so they are reproductive or necessary part of the flower. तो इसको क्या कहेंगे बेटा, necessary part कहेंगे, understand, या reproductive part कहते हैं, clear, reproductive part, ठीक है ना। तो ये सब क्या है फ्लोरल पार्ट्स है, ठीक है ना। तो ये भी तो मॉडिफिकेशन हो गया इसमें। अब कोई काइलिक्स है तो इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, है ना, कोरोना क्या है तो उसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन और अट्रैक्शन टू द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, अंडरस्टैंड। और एंड्रोइसियम इसका, यस, इसका मेन फंक्शन क्या है भाई, ये मेल सेक्स ऑर्गन है ना, मेलनेस को भी प्रोड्यूस करता है भाई। एंड्रोइसियम इज प्रोड्यूस द मेलनेस इन द फ्लावर एंड गाइनोइसियम, यस, फीमेलनेस इन द फ्लावर, अंडरस्टैंड भाई। एंड्रोइसियम फाइनली प्रोड्यूस द मेल सेक्स ऑर्गन, ओके। हाँ, yes, 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 है ना बेटा। So it is clear ना बेटा, हो गया, कर लिया इसको। The main part is main part, पता है वैसे भी male and female, तो ये चीजें क्लियर हो गई ना। So it is the all the steps of the microsporogenesis, इस पूरे प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। मीन्स क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज ए प्रोसेस इन विच द माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म, माइक्रोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, ओके, बाय द डिप्लॉयड सेल, बाय द पॉलन मदर सेल, बाय द माइक्रोस्पोर मदर सेल, राइट, यस। सो द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, this process is known as microsporogenesis, clear, understand, okay, हाँ पूछो बेटा, पूछो सर। एंड्रोइसियम में 3 पार्ट होते हैं, हाँ आपने बनाया, थोड़ी जानते हैं, फिलामेंट पेंथर सबसे डेवलप होता है, उसको डेवलप होने का उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया, उसके 4 पार्ट्स हैं, उसके माइक्रोस्पोरेंजिया को, और माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है मेन, उसके अंदर मदर सेल होते हैं, मदर सेल सर डिवाइड करके स्पोर बनाते हैं। ये सर स्पोर आगे जब निकलेगा तो निकलने का रास्ता इसके आगे बताएंगे, उसके आगे बताएंगे ना, वो बेनिफिट जनरेशन बता रहे हैं। इसके बाद आप उधर बढ़ेंगे। हमने क्वेश्चन पूछ लिया ना, उन्होंने लास्ट क्वेश्चन पूछ लिया तो उसको बता रहे हैं। इसके बाद अब आप बैठिए, अब आप फॉर्मेशन हो गया, उसके बता रहे हैं। तो माइक्रोस्पोर्स बन गए बेटा, और माइक्रोस्पोर्स है क्या, क्या है ये में क्या है, पॉलन ग्रेन क्या है, पॉलन ग्रेन। ये भी क्वेश्चन पूछता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्पोर्स, तो पॉलन ग्रेन में ये चीज पहले जानो, यानी
फाइनली ऑल ऑफ यू गेट द pollen grain. pollen grain. pollen. अब pollen grain होता कैसे है ये हम अभी उसी में आपका आंसर आ जाएगा. देखिए it means pollen grains erased from here. Okay, right. pollen grains. अब यहाँ से हम आपको बता रहे हैं अब ये जो स्टेप्स उतना तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हुआ, समझ लो बेटा. और इसके बाद का जो स्टेप होगा वो मेल गैमेटोफाइट बनाएगा, यानी वो गैमेटोफिटिक जनरेशन में आएगा. इस नाते हमने इस पूरा जो सिक्वेंशियल ऑर्डर है इसको दो पार्ट में डिवाइड करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ. एक तो स्पोरोजेनेसिस है, दूसरा गैमेटोजेनेसिस. नाउ द गैमेटोजेनेसिस इज स्टार्टेड फ्रॉम हियर. ओके, अब यहाँ से गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है, लेकिन उठाएंगे यहीं से, घबराइए नहीं, लिंक नहीं टूटेगी. क्लियर ना? मैंने माइक्रोस्कोप से ही हम आगे बढ़ रहे हैं. बस ये यहाँ से यहाँ तक एक प्रोसेस है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा प्रोसेस स्टार्ट होने जा रहा है. ध्यान से समझो. तो बेटा पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन है क्या? यही पॉलन ग्रेन है. एक्स स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. क्लियर? तो पॉलन ग्रेन इज एक्स स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. इसके माने क्या? माइक्रोस्पोर्स. क्या है? माइक्रोस्पोर्स. क्लियर ना? अब क्लियर हो गया. मैंने वहीं से लिया है मैंने, लेकिन उतना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है. ठीक है ना? अब ये गैमेटोजेनेसिस हम स्टार्ट कर रहे हैं. कैसे स्टार्ट देखिए. तो पॉलन ग्रेन्स आप जानते हैं, पॉलन ग्रेन्स के दो लेयर होते हैं. देयर आर टू लेयर्स, एक्साइन एंड एंटाइन. ओके, एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन. अंडरस्टैंड? तो इस तरह से ये हो गए पॉलन ग्रेन्स. राइट? देखो समझो. यूट्यूब निकलने वाली बात को बताया क्लियर हो गया. ठीक है? ये देखिए. अब बेटा देखो, जहां जहां एक्साइन लाइक करता है, इट मीन्स आउटर सरफेस. देयर आर टू रीजन्स. ओके, जो आउटर सरफेस है ना, उसको हम एक्साइन कहते हैं. जो इनर सरफेस है उसको एंटाइन कहते हैं. क्लियर? आउटर सरफेस पे स्पोरोपोलेनिन कहीं कहीं लाइक करता है. जहां लाइक करता है उसी पॉइंट को हम जर्म पोर कहते हैं. क्या कहते हैं? जर्म पोर. ये देखिए क्लियर हो जाएगा. इट इज जर्म पोर. Okay, and it is exine, right? Okay, so the outer layer of the pollen grain is called exine, which is made up of sporopollenin. Okay, and inner layer, yes, inner layer of the microspore, inner layer of the pollen grain is entine. Okay. तो यह जो इनर लेयर है, इनर लेयर कैसी होती है? स्मूथ होती है. इनर लेयर इज स्मूथ एंड आउटर लेयर मीन्स एक्साइन इज रफ. ओके, रफ एंड कैल्केरियस. तो ये रफ है. एक्साइन लेयर कैसी है बेटा? रफ है. और इसकी बनी है ये स्पोरोपोलेनिन. मैं लिख दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. स्पोरोपोलेनिन, स्पोरोपोलेनिन. राइट? ये जर्म पोर है. और ये जो स्ट्रक्चर है इसको एंटाइन कहते हैं. एंटाइन कैसी है बेटा? स्मूथ है. कैसी है? स्मूथ है. ठीक है ना? अब देखिए होता क्या है, इसके बाद का क्या स्टेप है देख लीजिए. ये स्ट्रक्चर माने इस तरह से स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इज पॉलन ग्रेन. ओके, रिसीव्स बाय द स्टिग्मा. यही तो, यानी द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन. एंड पॉलिनेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप है पॉलिनेशन. यानी
एंथर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचता है, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। एंड पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, ऑल ऑफ यू नो। सेल्फ पॉलिनेशन मीन्स ऑटो, है ना, एंड यस, एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये स्ट्रक्चर स्टिग्मा पर पहुंचता है। क्लियर? नाउ गेटिंग द एक्स्ट्रा वाटर by the pollen grains swells up, swelling हो जाती है, यानी pollen grains swell कर जाते हैं, एक्स्ट्रा वाटर वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, है ना, एब्जॉर्ब करके ये क्या होते हैं, स्वेल कर जाते हैं। ठीक है ना? जब स्वेल कर जाते हैं तो जर्म कोर, जो ये जर्म कोर है जहाँ स्पोरोपोलिन लैक करता है, जहाँ स्पोरोपोलिन नहीं है। अब देखिए, और स्पोरोपोलिन इज हार्ड स्ट्रक्चर, कितना हार्ड है, इट इज वेरी रेजिस्टेंट फॉर एनी एंजाइम्स, फॉर टेम्परेचर। जो स्पोरोपोलिन है, इट इज हार्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, द एंजाइम इज हार्ड, ओके, एंड रेजिस्टेंट टू एंजाइम। किसी भी एंजाइम के लिए रेजिस्टेंट है, टेम्परेचर के लिए रेजिस्टेंट है ना, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर उसको रैप्चर नहीं कर सकता, हम जानते हैं, ओके। सो जर्म कोर, जहाँ जर्म कोर है बेटा, जहाँ जर्म कोर है माने जहाँ स्पोरोपोलिन नहीं है, राइट, वहाँ वहीं से एंटाइन जर्म ट्यूब बनाना शुरू कर देता है। ये ओके, मीन्स एंटाइन टू फॉर्म द pollen tube, okay, from where, from the, yes, at the site of the germ, यानी जर्म कोर की साइड से वहाँ से ये निकलना स्टार्ट होगा। यस, इस तरीके से, माने दैट स्ट्रक्चर इज चेंज टू दैट स्ट्रक्चर, इसमें चेंज हो जाता है, कन्वर्ट। ये एक pollen, इट इज द pollen। ये सर स्टिग्मा पहुंचने के बाद ये सब करता है, रुको बताना आपको। यस, व्हाट? ये सर स्टिग्मा पहुंचने के बाद सब कुछ करता है। यस यस, पॉलन ट्यूब कहाँ बनना स्टार्ट होता है, जब स्टिग्मा पर पहुंचता है तब। यस, पहले नहीं बनाएगा, ठीक है, पहले नहीं बनाएगा। अरे भाई वो बाद में दूसरा पार्ट है ना, पहले एक पार्ट क्लियर कर लें, पहले एक पार्ट में क्लियर कर लो, उसको बाद में बताएंगे। तो बेटा इस तरह आप देखो, सुनो, अब न्यूक्लियस पर आ जाते हैं, इसके अंदर क्या है, तो मैंने आपको ऐसे बता दिया रखिए, लेकिन और समझो, डीप में जाओ, डीप में जाइए। देयर आर द टू न्यूक्लियस, देखिएगा पहले न्यूक्लियस वाला ही आप समझाते हैं, ठीक है ना, ये समझो इसको, ये किस स्ट्रक्चर ये बनाइए, ठीक है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं बेटा वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, यहाँ से बनता है। देखिए, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, इट इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस को और क्या कहते हैं, एक नाम और है, कोई बताएगा? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस है, छोटा न्यूक्लियस, जनरेटिव। यस, वेरी गुड, इट इज जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव न्यूक्लियस, ओके, राइट डाउन, नोट करते जाइए। वेजिटेटिव न्यूक्लियस का नाम है ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस। Here, generative cell. It is generative cell, it is vegetative cell, right? There are two cells inside the pollen tube. Clear? जो जनरेटिव सेल है, ठीक, जनरेटिव सेल स्मॉल होता है कंपैरेटिवली वेजिटेटिव सेल, ओके, एंड इन द वेजिटेटिव सेल्स देयर आर सो मेनी vitamins, okay, yes, and food reserve material are present inside the vegetative nucleus, which is provide the nutrition to the generative nucleus, to the generative cell. इस जनरेटिव सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, कौन? वेजिटेटिव
या वेजिटेटिव सेल्स, यानी यह पूरा स्ट्रक्चर वेजिटेटिव सेल कहलाएगा बेटा, और इसके इनसाइड जो न्यूक्लियस है इसको वेजिटेटिव सेल, राइट। ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, जनरेटिव न्यूक्लियस को। जनरेटिव न्यूक्लियस स्मॉल इन द साइज, छोटा साइज होता है, लेकिन यदि सेल जो है ये मेन जर्म सेल बनाता है, क्लियर, जी हाँ, यही मेन जर्म सेल बनाता है। यानी एक स्प्लिट होकर के जो जनरेटिव न्यूक्लियस है ये स्प्लिट होकर के मेन जर्म सेल फॉर्म करता है। और कितने, दो, यानी देयर आर टू मेल सेक्स आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ कॉन्सेप्ट, क्लियर, बोलो, क्लियर हो गया। और ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस ये डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, क्लियर। तो इस तरह से जो है, हाँ, अब यहाँ हम पॉलिट्यूब दिखाएंगे, पॉलिट्यूब में क्या बनाएंगे। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डाइवर्ट इस तरह समझिए, आप ऐसे समझ लीजिए कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस इधर है और ट्यूब न्यूक्लियस, हाँ ऐसा समझ लो, तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, देख लीजिए कैसे। क्लियर कर लो, ये एक्साइड है, तो यहाँ लिख देंगे फ्रैक्चर्ड एक्साइड, एक्साइड मिल चुकी है। यह क्या है, एंटाइन है ना, यस, यानी यहाँ लिख सकते हैं पॉलिट्यूब फॉर्म्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ, है ना, यस, बाय द जर्मिनेशन ऑफ, यानी जर्मिनेट कौन करता है, एंटाइन जर्मिनेट करता है, यस, जर्मिनेशन ऑफ एंटाइन, क्लियर, ओके। हम न्यूक्लियस को देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ये इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, आगे, समझ रहे ना, ये जस्ट ऐसे यहाँ बना हुआ, और जो दो मेन न्यूक्लियस है वो इस तरह से है, they are the male gametes. So we can say that there are two male sex cells or two male gametes are formed, okay, by the division of the generative nucleus, clear, हाँ, last word क्या है, ये बेटा एंटाइन, जनरेशन ऑफ एंटाइन, एंटाइन यस जर्म ट्यूब बनाता है, जर्म ट्यूब भी पॉलन ट्यूब कहलाता है। मेल सेक्स सेल और मेल जर्म सेल, है ना, मेल जर्म सेल या स्पर्म हेयर, ये डायग्राम बना लीजिए। और ये जो न्यूक्लियस है इसको क्या कहते हैं, हाँ, दैट इज ट्यूब न्यूक्लियस, क्या है बेटा, ट्यूब न्यूक्लियस। आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, फिर से एक बार, मतलब क्या, पॉलन ग्रेन में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं, देयर आर टू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द पॉलन ग्रेन, फर्स्ट इज जनरेटिव न्यूक्लियस एंड सेकंड इज वेजिटेटिव न्यूक्लियस, माने वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, ओके। सो द जनरेटिव सेल इज, yes, generative cell is divisible, okay, and to form the two male sex cell, and vegetative cell provides the nutrients to the, yes, and to form this structure, clear। हम ये जो
स्टिग्मा पर पहुंच करके माइक्रोपाइलर एंड पर पहुंच जाता है, माइक्रोपाइलर एंड से इंटर कर जाता है। कहाँ पर इंटर करेगा बोलो? ओव्यूल में, यही तो, जिसको कि हम क्या कहते हैं, मेल सॉरी फीमेल, ठीक है ना। यानी यह आपका पूरा जो सेट है, मैंने आपको एक तरफ पूरा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक्सप्लेन कर दिया और दूसरे तरफ हमने आपको माइक्रोगैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट ये एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो इट इज ऑल अबाउट योर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेल गैमेटोफाइट, द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी माइक्रोगैमेटोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोगैमेटोफाइट। ओके, क्लियर? मेल गैमेटोफाइट कॉन्सेप्ट क्लियर? यस। यानी माइक्रोस्पोर बनने तक का जो प्रोसेस है वो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है बेटा। और यहाँ जो मेल गैमेटोफाइट यानी मेल गैमीट बनने तक का जो प्रोसेस है वो मेल गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर? सो इट इज द मेल गैमेटोजेनेसिस या माइक्रोगैमेटोजेनेसिस means the formation of male sex cell. There are two male sex are formed in the angiospermic plant. Okay, and one male sex cell is fused with the egg cell. Okay, egg cell, that is called true fertilization or syngamy, and second male sex, okay, and other second male sex, male gamete fused with the endosperm, sorry, polar nuclei or secondary nucleus, okay, to form endosperm, and endosperm is triploid structure. अंडरस्टैंड? 3x उसकी वैल्यू कितनी है? 3x है ना। तो वो कैसा, वो उसका फंक्शन क्या है? न्यूट्रिशनल है, वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ओके, एंड हियर in the true syngamy, in the true fertilization, there are two X structure now once again is formed known as zygote. फिर जाइगोट बन गया, यानी जाइगोट इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन। फिर वहीं से स्पोरोफाइट स्टार्ट हो जाएगा। बोलो, क्लियर? ये चीज है। सो इट इज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तेज बोलो थोड़ा सा। हाँ, जो स्टिग्मा पर, हाँ यस स्टिकी है ना, जो स्टिकी सर भाई स्टिग्मा है क्या रियल में? जब पॉलन ग्रेन्स वहाँ, अब देखो अब यहाँ इसको एक्सप्लेन कर दें, ये पॉलिनेशन का टॉपिक है। व्हेन द पॉलन ग्रेन्स रीच टू द स्टिग्मा, वहाँ क्या होता है? यानी अब देखो बता, ये मिटा ना बताने 2 मिनट लगता है, जिस पे आइए उसी वक्त हो जाता है। अभी आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। यहाँ पर मेगा स्पोरोफिल से शुरू कर दी। अभी आपको आना पड़ेगा पॉलिनेशन के लिए। स्टिग्मा ये प्रोसेस खत्म हो गया ना, ये तो क्लियर हो गया आपको। जैसे 2 मेल सेक्स बनेंगे, ये तो क्लियर हो गया आपको। फीमेल वाले पर फीमेल वाले पर आते हैं। हाँ, तो ये अभी आ ही जाएगा बीच में, तो उनका डाउट हो जाएगा क्लियर। अरे भाई, तो इनका अब ये खड़े हो गए तो इनका डाउट क्लियर कर दिया जाए। बैठ जा बेटा, ठीक है, चलो चलो अभी आते हैं उस पर, है ना। मेगा फर्टिलाइजेशन पर अभी नहीं आए ना। हाँ, यस, बोलो बोलो।
क्लियर हो गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और वेरिटोजेनेसिस। अब इस पर चलते हैं, दोनों जब आप पैरेलल समझ लेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यही तो यस सर। हाँ भाई व्हाट डू यू नीड, आपकी जरूरत क्या है, हमको उसको बता देना। आप जैसा कहेंगे हम उसी के बारे में, अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो उसको छोड़ करके आगे चलेंगे, कोई बात नहीं। बॉटनी बड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें एक छोटे छोटे टर्म्स हैं, अगर आप उनको नहीं समझ पाएंगे तो कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा। अब देखिए आते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मीन्स मेगास्पोरोजेनेसिस ये वही चीज माने मेगास्पोरोजेनेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, है ना। The process of formation of megaspores is called megasporogenesis. Okay, माने फीमेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल स्पोर्स यानी मेगास्पोर्स, ओके, हाँ, का फॉर्मेशन मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है, राइट। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में देख लीजिए, हाँ ये पूरा स्ट्रक्चर, अब देखो फिर से कॉन्सेप्ट क्लियर करो। इस पूरे स्ट्रक्चर को फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल सेक्स ऑर्गन कहते हैं। फीमेल सेक्स ऑर्गन को ही हम क्या कहते हैं? गाइनोसियल कहते हैं ना बेटा, क्या कहते हैं? गाइनोसियल। इसकी एक यूनिट स्टिल कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टिल कहलाती है। सारे टर्म्स क्लियर मैं कर देता हूँ, कुछ छोड़ नहीं रहा, ठीक है ना। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर फीमेल सेक्स ऑर्गन करवाएगा, ठीक है ना। ये हो गया स्टिल एंड गाइनोसियल की यूनिट है, स्टिल कहलाती है, ठीक है ना। अब देखो स्टिल या कार्पेट है बेटा, स्टिल या कार्पेट। अब ये इसके तीन पार्ट, जैसे वहाँ हम आपको बताए थे, है ना, एंथर, फिलामेंट और कनेक्टिव, है ना, वैसे इसके भी कौन कौन से? एक तो हो गया स्टिग्मा, क्या हो गया? स्टिग्मा। दूसरा क्या हो गया? स्टाइल। और तीसरा क्या हो गया? राइट, क्लियर। तो स्टिग्मा इसमें कौन है? अपर पार्ट, सबसे ऊपर का जो पार्ट है ना, इसको कहते हैं स्टिग्मा। Where the pollen grains are arrived. Here it is style. It is soil part. Soil and basal part of right. अब देखिए ओवरी में क्या होते हैं? ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हैं। क्लियर? ओवरी में ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट टर्म देखिए, ओवरी एंड इट ओव्यूल। ओवरी का ओवरी जो है, ओवरी फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। पहले तो ये चीज क्लियर कर लीजिए, ओवरी फ्रूट है और ओव्यूल जो है वो क्या है? राइट, ओव्यूल क्या बनाता है? सीड बनाता है। देखिए ये ओवरी है, इसमें विजिबल पार्ट ओवरी खाने वाला। हाँ यस, विजिबल पार्ट। ये देखिए इसमें चैम्बर्स होते हैं, दे आर द चैम्बर्स, राइट, चैम्बर्स होते हैं। और इस चैम्बर्स में आप देखिए मल्टीलॉक्यूलर में भी मल्टीलॉक्यूलर और यूनिलॉक्यूलर। अगर एक ही ओव्यूल है, एक ओव्यूल हो सकता है या एक से भी हो सकता है, ओके। अगर एक है जैसे मैंगो इसमें एक ही सीड पाया जाता है ना, यस। और अगर मल्टीलॉक्यूलर ओवरी है तो उसमें कई सीड्स पाए जाए, मेनी सीड्स पाए जाए। इसका एग्जाम्पल बताओ। हाँ यस, पपाया हो गया, है ना। देयर आर सो मेनी सीड्स, क्लियर।
ये चीज समझ में आ गया। अब देखो मेगा स्पोरोजेनेसिस में पहले यानी इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, जैसे जैसे उसमें जो पैटर्न चला था इसमें बताइए, टर्म्स आप लोग बताइए, लिखते जाते हैं आप लोगों को बताओ। हाँ ठीक है। सो फीमेल सेक्स आर्गन बोलो क्या, फीमेल सेक्स आर्गन को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, मेगा बोलो मेगा स्पोरोफिल। इट इज मेगा स्पोरो, द कंप्लीट स्ट्रक्चर इज मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरोफिल, This is the female sex organ. राइट। मेगा स्पोरोफिल की वैल्यू 2s, क्लियर। Yes, sir. मेगा स्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल के इनसाइड मेगा स्पोरेंजियम समझेंगे ना, तो मेगा स्पोरेंजियम जी हाँ, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम भी 2s, क्लियर। बिल्कुल लाइन डायग्राम पढ़ेंगे तो टर्म्स भूलेगा नहीं, आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसी नाते हम आपको स्टेप वाइज समझा रहे हैं लाइन डायग्राम, जो लाइन डायग्राम का हमने हेल्प लिया है, इसी नाते इससे सारे टर्म्स क्लियर हो जाएं और कुछ कुछ छूटेगा इसमें स्पोरोजेनेसिस में। तो बेटा मेगा स्पोरोफिल है ना, मेगा स्पोरोफिल, फिर मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोरेंजियम के बाद मेगा स्पोरेंजियम में क्या होगा बोलो, अभी नहीं, अभी नहीं, इसके ऊपर एक स्टेप है, छोड़ो स्टेप ना छोड़ो, बताइए कौन बताएगा। मेगा स्पोरोजेनस टिश्यू है ना, मेगा स्पोरोजेनस सेल्स, मेगा तो मेगा स्पोरोजेनस सेल्स या इसकी वैल्यू बेटा 2s, x बुक्स में आपको इस तरह नहीं मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट है, ये आप देख लीजिए, किसी को बुक में तो लिखा है सब ऐसे, लेकिन नहीं मिलेगा, है ना, क्लियर। तो मेगा स्पोरोजेनस सेल्स, राइट, मेगा स्पोरोजेनस सेल्स और यानी ये जो मेगा स्पोरोजेनस सेल्स है इनमें इंटरनली कन्वर्जन हो जाएगा एंड दैट मेगा स्पोरो सेल्स इज कन्वर्टेड इनटू द मेगा स्पोर मदर सेल्स, ठीक है ना। यस, तो इसके बाद क्या लिखेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल लिखो, लिखते जाइए मेगा स्पोर मदर सेल, राइट। ये क्या है, मेगा स्पोर। अब बेटा इसी में जो मेगा स्पोर मदर सेल है, मान लीजिए जो एमएमसी है ना, यस एमएमसी, इसी का होगा क्या, रिडक्शन डिवीजन है ना, इसी का रिडक्शन डिवीजन होगा। और रिडक्शन डिवीजन माने मियोसिस डिवीजन, आफ्टर द मियोसिस डिवीजन एडी माइक्रो स्पोर मदर, सॉरी मेगा स्पोर मदर सेल टू फॉर्म मेगा स्पोर टेट्राड। टेट्राड जब मियोसिस होगा तो टेट्राड बनेंगे, टेट्राड स्ट्रक्चर बनता है। मियोसिस के बाद कोई भी स्ट्रक्चर टेट्राड बनता है। देयर आर 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर द मियोसिस प्रोसेस। रिडक्शन डिवीजन में, रिडक्शन डिवीजन आफ्टर द मियोसिस, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन है ना, मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो रिडक्शन डिवीजन के बाद 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होते हैं। देयर आर 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म एंड दे आर गैमीट्स, ठीक है, क्लियर। तो ये स्पोर टेट्राड, मेगा स्पोर टेट्राड बनेंगे। देयर आर 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म। तो इसके नीचे लिखो ना बेटा, लिखो हाँ, मेगा स्पोर टेट्राड 4 part of reduction division cell. स्पोर टेट्राड
बनेंगे दे बिकेम हैप्लॉइड एक्स, ओके। तो टेट्राड कैसे होंगे, एक्स होंगे। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखिए यानी इतना जो प्रोसेस, फिर देखो इतना जो स्टेप है हम इसको मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी द फॉर्मेशन ऑफ, अब यहाँ एक लाइन और दे दीजिए, एक स्टेप और बढ़ा दो, यहाँ लिखो मेगा स्पोर्स और इसकी लाइन क्या एक्स, यानी द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर्स। मेगा स्पोर्स का फॉर्मेशन मेगा स्पोरोजेनेसिस कहलाता है। क्लियर है ना बेटा? अब देखिए इसको बेटा there are 4 mega spores are found. 4 mega spores. 4 mega spores. कोई बताएगा कि इसके बाद क्या होता है? यानी यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अब यहाँ से फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। बीएससी पार्ट 1 का सेट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, क्योंकि फीमेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस कौन करेगा? गैमेटोफाइट पार्ट का, अंडरस्टैंड? यानी मेगा स्पोर्स ही फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखिए कैसे, देयर आर 4 मेगा स्पोर्स आर found. In which the 3 are degenerated, 3 मेगा स्पोर डीजनरेट हो जाते हैं एंड ओनली 1 मेगा स्पोर इज फंक्शनल। केवल 1 मेगा स्पोर ही फंक्शनल रह पाता है एंड 3 आर डीजनरेटिंग, ओके। तो इस तरीके से 3 जो मेगा स्पोर्स हैं ये डीजनरेट करता है। क्लियर? कुछ इस तरह से ऐसे बना सकते हैं। ये लॉब्यूल्स हैं, लॉब्यूल्स चैम्बर्स के आगे वैसे तो देयर आर 3 डीजनरेटिंग। यहाँ बना लीजिए, ऐसे डायग्राम बना करके तो क्लियर रहेगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? ऐसे बनाओ, ये डीजनरेटिंग मेगा स्पोर्स ऐसे बनाओ। देयर आर 3 डीजनरेटिंग मेगा स्पोर्स, मेगा स्पोर्स, और एक को दिखा दो, ये फंक्शनल ऐसे बनाइए, क्योंकि ये लीनियर ऑर्डर में अरेंज होती है, ठीक है ना? ऐसे बना दो। ऐसे यहाँ कर देते हैं, बाहर ही कर देंगे, कोई बात नहीं, ये ऐसे कर देते हैं इसको, जस्ट लाइक डीजनरेटिंग मेगा स्पोर्स। ये मेगा स्पोर्स डीजनरेट कर जाते हैं। समझ में आ रहा है बेटा सबको? बोलो बोलो बोलो। जी सर। कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जो समझ में नहीं आ रहा बताना बेटा, ठीक है?
तो ये क्या है, रीजनरेट करता है, रीजनरेटिंग मेगास्पोर्स। क्लियर? these are the number, okay, and one is functional, तो यहाँ इसका लिखना कैसे, one functional क्लियर, वन फंक्शनल मेगास्पोर्ट, एक मेगास्पोर्ट फंक्शनल रहता है, उसकी वैल्यू कितनी है, बोलो एक्स है, एक्स है, मानिए ये क्या है, एप्लॉयड है। अब बताइए एप्लॉयड अब क्या होगा, यानी एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट यानी फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म करता है। हाउ? These are the sequential process. Understand? मेगा गैमेटोफाइट तक के फॉर्मेशन का प्रोसेस एम्ब्रियोसाइट, जो कि कैसा होता है, हैप्लॉइड तो है, बट हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोसाइट? हाउ मेनी सेल्स? 7 cells and 8 nucleate stage, यानी after the development of one functional megaspores we get the 7 cell and 8 nucleate stage. How they get? By the division, by the repeated division. कैसे मिलेंगे? इनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, ओके, ट्रांसवर्सली दे आर डिवाइडेड एंड आफ्टर दैट वी गेट द 8 न्यूक्लिएट स्टेज एंड 7 सेल, यानी जो एम्ब्रियोसाइट होता है, फाइनली एम्ब्रियोसाइट जो बनता है, आप उसका स्ट्रक्चर है दिमाग में, देयर आर 3 एंटीपोडल सेल्स, 2 सिनर्जिड्स, 1 एग सेल and 2 polar nuclei. तो बेटा 3 antipodal cells, 2 synergids, how many? 3 plus 2 5 and plus 1 egg cell, how many? 6, understand, and plus 2 polar nuclei, यानी 6 plus 2 how many? 8. तो there are 8 न्यूक्लिएट स्टेज उसको कहते हैं, और सेल्स कितने हैं? 7 सेल्स, क्योंकि जो पोलर न्यूक्लियाई है वो सेंट्रल सेल में रहता है। क्लियर? तो एम्ब्रियोसाइट का इंटरनली जो है ये डायग्राम, ये दिमाग में सेट रखिए। क्लियर? एंड दीज पोलर न्यूक्लियाई आर कॉल्ड सेकेंडरी न्यूक्लियस, वही सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाता है, जिससे कि एक जो मेल सेक्स, 2 मेल सेक्स सेल्स है ना, अभी आपने डेवलपमेंट पढ़ा, डेवलपमेंटल प्रोसेस में मेल गैमेटोफाइट के कि 2 मेल सेक्स बनते हैं, 2 मेल सेक्स सेल्स बनते हैं, तो एक मेल सेक्स एक एग सेल से फ्यूज करेगा और दूसरा पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। ठीक है ना? तो यहाँ तक के स्टेज पर हम पहुँचेंगे ना, एम्ब्रियोसाइट तक तो पहुँचेंगे। क्लियर? तो कैसे बनाइए, अगर अपने आप को थोड़ा हम भी देखते हैं, बनाओ ना, आगे बढ़ो, इसके आगे बढ़ो। डेवलपमेंटल प्रोसेस बनाइए, दैट इज़ वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट। हमने आपको बता दिया आउटलाइन इसका। बनाओ बनाओ बेटा। बस 2 मिनट लगेंगे बनाने में। बना दिए सर? बना दिया? ये दैट इज़ करेक्ट, वो तो ठीक है, लेकिन इसका डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा ये बताइए ना सर। इंटर इधर से करता है, इस साइड से, वो बाद का स्टेप, इसके पहले का स्टेप बनाइए ना। एम्ब्रियोसाइट कैसे बनता है?
आप समझ नहीं पा रहे हैं। इसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसाइक। डू यू नो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट? मोनो मीन्स होता है सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल, और स्पोरिक माने स्पोर से। तो क्या एक स्पोर से माने वन फंक्शनल मेगा स्पोर। ओके, यस, टू गोइंग ऑन द डेवलपमेंट एंड बिकम्स एम्ब्रियोसाइक। और वही एक फंक्शनल मेगा स्पोर एम्ब्रियोसाइक में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इस पूरे प्रोसेस को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। करेक्ट? in which the three are degenerated and one is functional. So only one is functional and taking in the formation of embryosac, this process is known as monosporic development. इसको monosporic development कहते हैं। monosporic development important है भाई ये सब। इसी डेवलपमेंट को बनाने के द्वारा माने एक भाई एक ही तो आप सेल्फ फंक्शन कर गया, ऐसे ही तो आप दिखाएंगे भाई, यही तो एक सेल दिखाएंगे आप, सिंगल वन फंक्शन मेगा स्पोर। बोलो, ये देखो ऐसे मेगा स्पोर, वन फंक्शनल मेगा स्पोर दिखाएंगे, ये दिखाओगे ना। तो यहाँ से ये स्टेज कैसे बनेगी, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। बहुत छोटी सी बात है, हमको इतना सब बताया, आप ये नहीं बता माइटोसिस डिवीजन होता है। किसमें? इसके न्यूक्लियस में। किसके न्यूक्लियस में? मेगास्पोर के न्यूक्लियस। ऐसे समझिए, है ना? ये जो मेगास्पोर का न्यूक्लियस है, दैट न्यूक्लियस इज माइटोटिकली डिवाइडेड। माइटोसिस, तो माइटोसिस होगा तो क्या होगा बेटा? एक से दो सेल बनेंगे, एक से दो न्यूक्लियस बनेंगे। इस तरह से यह जो एम्ब्रियोसाइक है, इसमें दो न्यूक्लियस बनते हैं। कितने न्यूक्लियस? दो न्यूक्लियस। माने इसमें रिपीटेड डिवीजन, राइट? इस स्टेज को क्या कहते हैं? टू न्यूक्लिएट स्टेज कहते हैं। यानी आफ्टर दैट डायड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। डायड यानी टू न्यूक्लिएट स्टेज। टू न्यूक्लिएट स्टेज आती है इसके बाद। इसको कहते हैं टू न्यूक्लिएट स्टेज। ऐसे लिख लो ना, स्टेज लिख लो। तो टू न्यूक्लिएट स्टेज या डायड, DYAD, डायड बनता। अब आफ्टर दैट हाउ मेनी? दो से कितने बनेंगे? चार बनेंगे। कितने बनेंगे? चार बनेंगे, है ना? तो 4 बना दो बेटा, 2 4 जस्ट लाइक। तो इसको क्या कहेंगे? 4 न्यूक्लिएट स्टेज। क्या कहेंगे? 4 न्यूक्लिएट स्टेज कहेंगे, ठीक है? एंड आफ्टर फिर माइटोसिस होगा, हैं? दे आर माइटोटिकली डिवाइडेड, माने रिपीटेड माइटोसिस।
इज गोइंग ऑन, ओके, रिपीटेड माइटोसिस। फिर उसके बाद 8 न्यूक्लिएट स्टेज आएगा, 8 न्यूक्लिएट स्टेज माने फिर एम्ब्रियो साइट इस तरीके से बनेगा और इसमें जो है after that these 8 nucleate are rearranged, फिर उनमें रीअरेंजमेंट होता है। तो रीअरेंजमेंट होगा तो एक एक डायरेक्शन में, है ना, यस, मूव कर जाएंगे। नहीं बेटा, साइज में चेंज नहीं आता, साइज में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि न्यूक्लियस तो वही है, वैल्यू तो उसकी वही है जो है, वैल्यू तो वही है। आप बताओ, नो चेंज इन वैल्यू, नो चेंज इन द शेप, नो चेंज इन द साइज, बस उसका आकार बढ़ता रहेगा। आप देखिए बाद एक एरो बना के ऊपर लिखेंगे रीअरेंजमेंट। आफ्टर दैट थ्री एंटीपोडल सेल्स। देखिए अब इसके दो एंड हैं, दो एंड, एक माइक्रोपाइलर एंड कहलाता है, दूसरा चेलेजियल एंड कहलाता है, चेलेजियल रीजन कहलाता है, ठीक है ना। तो जो चेलेजियल रीजन है उस रीजन पर एंटीपोडल सेल होते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेयर द एंटीपोडल सेल्स आर सिचुएटेड एंड वेयर द एग apparatus आर सिचुएटेड। एग apparatus किसे कहते हैं? दोनों सिनर्जिड सेल्स और एक एग सेल को मिला करके एग apparatus कहलाता है, ठीक है ना। एंड एंटीपोडल रीजन, एंटीपोडल रीजन वेयर इज सिचुएटेड इन द चेलेजियल रीजन, इन द चेलेजियल रीजन, ओके। एंड इन द माइक्रोपाइलर एंड पर एग apparatus, ठीक, चेलेजियल एंड पर एंटीपोडल सेल, ठीक है ना बेटा। दे आर 3 इन द नंबर, एंटीपोडल सेल 3 इन द नंबर। तो 3 एंटीपोडल सेल कहाँ होंगे? राइट, हाउ मेनी? ऐसे बना ये क्या हो गए? एंटीपोडल सेल क्या हो गए? क्लियर? अब देखो, लेकिन होते कितने हैं? 4 सेल इधर, 4 सेल इधर, ऐसे तो होंगे ना बेटा। 4 सेल एक एंड पर और 4 सेल एक एंड पर, तभी तो एक न्यूक्लियस बनाना है। तो 8 न्यूक्लियस को आप दिखाओगे ना, लेकिन है क्या कि एक न्यूक्लियस यहाँ से माइग्रेट करके सेंटर में आ जाता है और एक न्यूक्लियस यहाँ से माइग्रेट करके सेंटर में आ जाता है। होते तो हैं 4 4 एंड 4 प्लस 4 स्टेज है। लेकिन हम यहाँ पर एक स्टेप गायब कर दे रहे हैं, इसको दिखा रहे हैं डायरेक्टली। तो क्या देखिए बेटा, ये हो गए पोलर न्यूक्लियाई। क्या हो गए? पोलर न्यूक्लियाई। ये आप ठीक है ना। और इधर एक apparatus बनाओ, 2 सिनर्जिड सेल्स
माइक्रोफाइबर में जी हाँ, ये माइक्रोफाइबर, हाँ ये क्लियर होना चाहिए, ये माइक्रोफाइबर है, माइक्रोफाइबर है, ये माइक्रोफाइबर, ठीक। ये एक्सेल हो गया, पोलर न्यूक्लियाई हो गया, पोलर न्यूक्लियाई दोनों यूज कर जाएंगे और बनाएगा सेकेंडरी न्यूक्लियस, आप ऐसा लिख सकते हैं। इसके बाद फिर एक एरो बना करके, ठीक है ना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक, क्लियर। अब यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा कि एक एग सेल का फॉर्मेशन हो गया, एक सेकेंडरी न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, और वहाँ से दो मेल सेक्स सेल बनेंगे थे। ओके, सो देयर आर मेल सेक्स, दे आर फंक्शनल एंड रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन, they fused, they unite with the egg cell, okay, during the syngamy process, during the fertilization. तो एक मेल न्यूक्लियस इस तरह से मेरा एक सेल से फ्यूज कर जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और एक मेल सेल इस पोलर न्यूक्लियाई है ना या सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करता है और एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है, एंड दिस ओवरऑल प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। यस, इसको नवास्टिन साहब ने डिस्कवर्ड किया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन SG जी नवास्टिन। डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड फ्लावरिंग प्लांट। ओके, हाँ बेटा, हाँ माइक्रोफाइबर ये माइक्रोफाइलर एंड लिखा है, SMICROPYLAR, राइट डाउन। माइक्रोफाइलर एंड, माइक्रोफाइलर एंड पर एक ऑपरेटस पाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे लिख भी सकते हैं कि मेल सेक्स सेल X, ओके, प्लस एग सेल X, बोलो, गेट जाइगोट X, ओके। एरो पर लिख देना सिंगेमी, क्या लिख देंगे, सिंगेमी, ओके। एंड ये फर्स्ट हो गया, दूसरा मेल सेक्स सेल X प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस X फर्टिलाइजेशन। इस तरह से हमने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, है ना, मेल गैमेटोफाइट, फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट माने गैमेटोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेटोजेनेसिस, ओके, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, ओके। So all the steps are included in the life cycle of angiospermic plant। इस तरीके से एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का पूरा लाइफ साइकिल है, और इसमें कितने इवेंट्स होते हैं, कितने स्टेप्स हैं, वो सब ये है। सारा कुछ क्लियर हो गया, बोलो yes, है ना बेटा? यस, थैंक यू सो मच।